بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، جن کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کا میسج دیا، کہنے لگے رسالات ربی ابلغکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا میسج پہنچانے والا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں ایک تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ باقی سب معبودوں جھوٹے الہوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، آگے سے قوم نے جواب دیا، ہمیں تو لگتا ہے تو دیوانہ ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ کہنے لگے ہمیں لگتا ہے تو کھلی گمراہی میں ہے، بے وقوف نظر آتا ہے تو ہمیں، بھئی تو ایک رب کی بات کرتا ہے، ہم اور ہمارے آباء اجداد تو کئی مدتوں سے ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا تمہیں یہ تعجب ہے کہ میں تمہیں میں سے ایک رسول بن کر آ گیا ہوں؟ تمہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارے جیسا ایک بندہ ہمارے اوپر نبی بن کے بیٹھ گیا ہے؟ یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ایک بندہ تمہیں میں سے اللہ نے پیغمبر بنا دیا، اور وہ تمہیں اپنے رب کے میسیجز دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت تمہیں بتاتا ہے، اور اللہ سے نصیحت کا تمہیں درس دیتا ہے تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ باتیں ان کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، ترجمہ اگلی نیکسٹ آیت، قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم عاد والوں نے۔ زیادہ تر نا ان کے سردار لوگ بولتے تھے، جو چلاک اور تیز ترار ہوتے تھے نا، وہ بولتے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کا مطلب ہے کیا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اس کا مطلب ہے کیا، جئتا تو آیا ہے، نہ ہمارے پاس، اس لیے لنعبد، اس لیے کہ ہم عبادت کریں اللہ وحدہ، ایک اللہ کی، ونذر، اور ونذر ما کان یعبد آباؤنا، ونذر، اور چھوڑ دیں ہم ان تمام معبودوں اور بتوں کو جن کو ہمارے آباء اجداد پوجا کرتے تھے، جن کو ہمارے آباء اجداد سجدہ کرتے تھے، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں اور تمہارے ایک الہ کی عبادت کرنے لگیں؟ کہتے ہیں نہیں، اور تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہم انہیں چھوڑ دیں اپنے آبائی ربوں کو، فأتینا، لہٰذا ہم تو نہیں ماننے والے، لیکن تم ایسے کرو، فأتینا، پس لے آؤ ہمارے پاس، بیما، اس چیز کو، تعیدنا، جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، جس کی دھمکی دے رہا ہے نا کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ پیچھے بتائی نا بات کہ میں تم سے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں یہ دھمکیاں شمکیاں ہمیں نہ لگاؤ، اگر ہے نا واقعی دھمکیوں والی بات تمہارے اندر تو لاؤ، لے کے آؤ وہ عذاب، کنتا، اگر ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے، اگر تو سچا ہے تو لا، ابھی لا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ اور کملے ہو، ابھی آ گیا، تم مارے گئے تو پھر کر کیا لوگے؟ کیوں خودکشی پر تل گئے ہو، خود کو موت کی دعوت دے رہے ہو، اللہ کے غیظ و غضب کو آواز دے رہے ہو۔ کہتے ہیں اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لنعبد، کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، یعنی تو ہمیں یہ بتانے آیا ہے، اور وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤنا، اور ہم اپنے ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے آباء اجداد نسلوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ ہم تیری بات مانیں گے نہ ان کو چھوڑیں گے، لہٰذا تو جو اتنی تڑیاں لگا رہے ہیں نا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ وہ جس کی تو تڑیاں لگا رہے، لے آ جس کے وہ تو ہمیں ڈرا رہا ہے، جس کے ساتھ
ले आ जिससे हमें धमका रहा है, इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चों में से है। अल्लाह के गैज़ो गज़ब को आवाज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो इस पर कारसाज है। अल्लाह तो दे सकता है, अगर दे दे तो घाटा किसको है, नुकसान किसको है? नुकसान तो उसी को है ना जिसके ऊपर आएगा। तो ये बंदा खुद के लिए दावा दे रहा है कि मेरे ऊपर ले। कहते हैं क्या हम तेरे आने की वजह ये समझे कि बाकी सब माबूदों को छोड़कर एक इलाह की इबादत करें, चाहे हमारे आबा अजदाद इन्हीं की पूजा करते रहे? क्या ख्याल है वो कितने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी? वो भी तो तबलीग थी ना कि इतने रब्बों को माने, इतने इलाहों को, ये इस चीज़ का इलाह, ये इस चीज़ का इलाह। क्या तुम्हारा रंग इतना ही आला है कि एकदम से चढ़ जाएगा? है ना आला? सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग अहसन है, खूबसूरत है और ये चढ़ के रहता है। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ आ गया, बातिल छट गया। बातिल को जाना ही जाना है। हक़ के मुकाबले में बातिल के पास पावर ही नहीं है टिकने की। कहते हैं क्या वो सब छोड़ दे? ये तो तौहीद की दावत हर पैगंबर ने दी। आज का दौर आप जानती हैं प्यारी बहना, किसी को तौहीद का दर्स देना, हमारे मुसलमान बहन भाई इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते। हमने आपस में एक दूसरे के नाम रख लिए हैं, ये वहाबी है, ये सुन्नी है। ये किस लिए नाम रखे हैं? ये शैतान ने हमें उकसाया है कि तुम नेकी की तरफ ना आओ बल्कि इन नामों में उलझे रहो। अब देखें ये कितनी अहमकाना बात है कि इन नामों की उलझन में हम अल्लाह से ही दूर हुए जा रहे हैं। अब वहाबी कुरान पढ़ेंगे तो हमने तो कुरान नहीं पढ़ना क्योंकि ये वहाबी पढ़ रहा है। वहाबी नमाज पढ़ रहा है तो हमने नमाज नहीं पढ़नी क्योंकि ये वहाबी कर रहा है। वहाबी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, वहाबी अल्लाहु अकबर कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। है वो तो बड़े अच्छी और ख़ास ज़ात का नाम ले रहा है, अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ये शैतान ने हमारे दिलों में एक ऐसा इमेज बिठा दिया है कि नहीं, इनकी बात अच्छी नहीं है, चाहे वो अच्छे रब की जाए। शैतान है ना, वो उसे पता है ये मुसलमान है, अब ये बुतों की तो इबादत नहीं कर सकते। उसने इनको इतने आसान तरीके से, इतनी मेहनत से गुमराह किया है कि इसने इस्लाम से दूर कर दिया मुसलमान को। कुरान घर में पढ़ा है तो हाथ ही नहीं लगाना। जो ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला है उसी को तो तनकीद की नज़र देखने लगते हैं हम, चाहे वो अहले सुन्नत ही क्यों ना हो। अहले सुन्नत बहने भाई भी अपने अहले सुन्नत भाई से भी पढ़ना भी इतना गवारा नहीं करते। कहते क्या ये हाजी है, देखियो ये नमाज़ों बड़े वखरे इनके काम है, क्योंकि शैतान ने ऐसे ही उकसाना है ना, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। वो तो दुश्मन है, वो कभी भी सुधरने नहीं देता, वो तो चालें चलता रहता है और उसने हमेशा चली। हमारी नस्लें पीछे तारीख पढ़ के देखें, उसने नेकी के नाम पर गुमराह कर दिया, हमें और हमारी नस्ल को गुमराह करके रख दिया। उसने नेकी के नाम पे बुत बनाए थे और उनकी पूजा करने लगे नेकी के नाम पर। नेकी के नाम पर लूटता है ये शैतान। और हम यहाँ पर किसी नेक शख्स के भी खिलाफ हो जाए ना तो वो भी हम नेकी समझ रहे होते हैं। शैतान है इतना बदबख्त, हमारे ज़हनों में भूसा ही ऐसा भरता है कि वो हमें गलती लगती ही नहीं है। जब इंसान को गलती गलत लगने लगे तो वो गलती नहीं करता, बार बार तो बिल्कुल भी नहीं करता। एक बार हो जाए तो वो सॉरी कर लेता है, नेक्स्ट उसे शर्मिंदगी होती, मैं क्यों गलत करूं भाई। अब वो गलत भी करता है और कहता है मैं सही हूं। ये शैतान ने थपकी दी हुई है, हाँ करी चल ठीक है, तू शाबाश शाबाश, अगला ही गलत है, तू नहीं गलत। भला की है, गुस्सा आया इतने मुंह निकली है ना, तू कहना जान के करी है। शैतान ऐसी बातें बता के हमें बुराई के ऊपर गामज़े रखना चाहता है। वो कहते हैं कि इसे कभी रियलाइज ही ना हो कि मैं गलत हूँ। जब तौबा की शर्त है कि बंदे को रियलाइज हो मैं गलत हूँ और वो इस बात को माने कि मैं गलत हूँ, वो अल्लाह के सामने अपनी गलती रखे और शर्मिंदा हो कि अल्लाह मैं गलत हूँ, मैं नेक्स्ट गलतियाँ छोड़ दूंगा मेरे इलाह तेरी रजा के लिए। तो शैतान तो ये बात ही नहीं देखने देता। लिहाजा कहते हैं क्या तू हमें एक रब की दावत देता है,
कैसे हो सकता है इतने ज्यादा रबों का काम एक रब कर ले? क्योंकि वो सारे जो तुम लोगों ने रब बना रखे हैं ना, वो तुम्हारी तख्लीक हैं और तुम उस एक इलाह की तख्लीक हो। लिहाजा सबका मालिक अल्लाह है, तो वही सबका मुश्किल कुशा भी है, काम भी सारे वही कर सकता है। जो खुद के मालिक नहीं वो किसी का क्या करेंगे? तो जो खुदाई सबकी मालिक है वही सबके करेगी ना। कहते हैं क्या हम उन सबको छोड़ दें? मोटी सी बात शैतान ऐसे दिल में डालता है, ब्रीक नहीं डालने देता कि देखे तो सही ये है क्या, इनकी असलियत क्या, इनको घर के हम नहीं रखा, हम ही बना के हमें उठाते हैं, हम ही रखते हैं, हम इनको साफ करते हैं। ये नहीं बात शैतान सोचने देता, बारीक सी मोटी सी बस मोटी सी ये बात, वो सारे छोड़ दें और एक को पकड़ लें और एक की खासियत नहीं देख रहे। वो एक चीज क्या है, वो एक कितनी बड़ी जात है, उसके पास पावर कितनी बड़ी है, वो असल में है क्या आलीशान इतनी जात, इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते। शैतान आपको हक समझने के लिए आने ही नहीं देता, वो आगे दीवार दीवार पर्दे पर्दे हर मुमकिन कोशिश करता है ये बंदा हक से दूर रहे, ना समझ आए, ना अक्ल आए और ना ये कुछ कर पाए। जब अक्ल आ जाती है तो तकरीबन वो कुछ ना कुछ करता है, उसकी सोच बदल जाती है भाई, उसका अंदाज़े ज़िंदगी बदल जाता है। कहते हैं अड़ गए, कहते नहीं नहीं ये जहालत है। बात जब आप सुनते हैं ना, उसको ना तहकीक बारीक से लिया करें, बसीरत से उसको बारीक करके ना समझा करें कि इसकी क्या मतलब है, ये क्या आखिर है। उन्होंने ये नहीं किया और आगे से कहा हट दर्मी दिखाई। कहते हैं कि हमारे पास वो अजाब ले आ जिससे तू हमें दिन रात डराना शुरू कर दिया है, वो आ जाएगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी करके दिखा जो ना हो जाए। हम नहीं डरते, हाय अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, जो अल्लाह से नहीं डरता तकरीबन वो अल्लाह के गैज़ व गज़ब का शिकार है। अब अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं कि तुम अल्लाह से नहीं डरते हो, तुमने तो अल्लाह के गैज़ व गज़ब को खुद आवाज़ देना शुरू कर दी थी। तुम कहते हो ले आ हमारे पास, तो यकीनन तुम्हारे पास अजाब आ चुका। पैगंबर कह रहे हैं, क्यों कह रहा है कि तुम्हारी करतूत ही ऐसे, जिस हद तक पहुंच गए हो तुम अजाब के मुस्तहिक हो चुके हो, अगर वापस ना मुड़े तो अजाब यकीनन आएगा। अल्लाह कमज़ोर नहीं है, जिसको तुम बुला बुला के कहते हो ले अजाब ले अजाब, अल्लाह तो ताकतवर है, उसके ख़जानों में तो हर चीज़ पड़ी है, जिसे चाहे अभी यूज़ कर ले, कोई चीज़ उसे रोकने वाली नहीं, टोकने वाली नहीं, मसला मसाइल नहीं है, अभी चाहे तो वो कर सकता है। अगर वो नहीं कर रहा तो तुम लोगों की मोहब्बत में नहीं कर रहा कि शायद तुम सुधर जाओ। अल्लाह ने खुद पैदा किया है ना इंसान को, अल्लाह को इंसान से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह तेरी मोहब्बत में तुझे गुमराह नहीं करे, तुझे अपने अजाब का शिकार नहीं बना रहे, अल्लाह तुझे हलाक नहीं कर रहे, वो तुझसे मोहब्बत करते हैं कि मेरा बंदा पलट आए, मेरा बंदा पलट आए। और पलट कर आना बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी लज्जत की बात है, क्योंकि हकीकी इलाह तो वो है, उसके अलावा तो कोई दर ही नहीं है। अल्लाह को अच्छा लगता है कोई बंदा गलती करे तो फिर भी मेरे दर पे आए। शैतान तो चाहता है कि गलती करके फिर अल्लाह के दर पे ना जाए, उसके दिल में यूं बातें डालता रहता है, कोई बात नहीं, अब एक गलती होगी है तो दूसरी भी सही, दूसरी होगी तो अब तीसरी भी सही, अब अच्छा चले ही जाएंगे ना अल्लाह के करीब, अभी दूर ही रहें दूर ही रहें। शैतान है ना, जैसे दूरियां बढ़ती हैं तो वो बढ़ती जाती हैं, कम तो नहीं होती। तो शैतान की यही चाल है कि ऐसे दूरियां डालता जाऊंगा हत्ता कि ये ऐसा गुमराह होगा, इसे गुमराही में मौत आ जाएगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें ऐसी कंडीशन से महफूज फरमाए और शैतान से हमेशा अल्लाह ताला हमें दूर रखे। वक़ाल क़द वक़अ, इतना काफ़ी है कि आगे करें।